ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଯିବା। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଏ, ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଏ, ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ହେ ରହିଅଛି ଚାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ହେ ରହିଅଛି ଚାହିଁ, ତୁମରି କରୁଣା ପାଇଁ, ତୁମରି କରୁଣା ପାଇଁ। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ, ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ, ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର। ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନେ ଆଜି ଅସଜଡ଼ା ହୃଦ ମୋର। ଏଇଥର ସିନା ଛାଡ଼ିଛି ତୁମକୁ, ଆଉ କରିବିନି ପର। ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନେ ଆଜି ଅସଜଡ଼ା ହୃଦ ମୋର। ଏଇଥର ସିନା ଛାଡ଼ିଛି ତୁମକୁ, ଆଉ କରିବିନି ପର। କଳଙ୍କିତ ହେଲା ହୃଦୟ ମୋର, କଳଙ୍କିତ ହେଲା ହୃଦୟ ମୋର, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ, ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ, ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର। ପାପର ଜଗତେ ଖୋଜିଲି ଯେତେ ମୁଁ, ସାଥେ କେହି ମୋର। ଥକି ଯାଏ ପ୍ରାଣ, ଛୁଟି ପଡ଼େ ପାଦ, ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର ମୋର। ପାପର ଜଗତେ ସାଥେ ନାହିଁ କେହି ମୋର। ଥକି ଯାଏ ପ୍ରାଣ, ଛୁଟି ପଡ଼େ ପାଦ, ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର ମୋର। ଅନୁତାପେ ଆଜି ଫେରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଅନୁତାପେ ଆଜି ଫେରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ସାହା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ, ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର। ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ, ଖୋଜୁଛି ଜୀବନେ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତମ ମହାନ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା। ଆଜି ଜୀବବାଜିରେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତମକୁ ହରାଇକୁ ଜୀବବାଜିରେ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତମର ସେ ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତମର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବ ରାଜା, ତମ ସାହାଯ୍ୟ କର ପରମେଶ୍ୱର। ଜୀବବାଜିରେ ରାଜା, ଆଜି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସେଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ରାଜା, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଗୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଜୀବବାଜିରେ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋହମାୟା ଠାରୁ ରାଜା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତମରି ସେବା ଆଜି ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମମାନେ କରିପାରିବୁ ରାଜା, ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ ଚିରନ୍ତନ,
जीवन केमिति भूलिबे तुमरी प्रेम केमिति भूलिबे तुमरी मुंडरे कोटा मुकुट पिठीरे करुणा छट हस्त पादे कोटार बेख हेलो क्षत बेक्षत बखरे बचारो गत छरिल रकत धार मो पापर पाए कुसे प्राण देल मुंडरे कोटा मुकुट पिठीरे करुणा छट हस्त पादे कोटार बेक हेलो क्षत बेक्षत बखरे बचार गत छरिल रकत धार मो पापर पाए क्रूसे प्राण देल जो प्रेमे पाई अच्छे क्षमादान जो प्रेमे पाई अच्छे परित्राण जो प्रेमे होई अच्छे परिवर्तन केमिति भूलिबे तुमरी प्रेम केमिति भूलिबे तुमरी प्रेम नथिरा पापर लेस तथापि दोषी साजिल रकते पाप धइल मते बचाइल केते जे दुख कसन नीरवे प्रभु सइल मो पापर पाए कुसे प्राण देल नथिला पापर लेस तथापि दोषी साजिल मुक्त कते पाप धइल मते बचाइल केते जे दुख कसन नीरवे प्रभु सइल मो परि पापी को अपनार कल जो प्रेमे पाई अच्छे मो आशीष जो प्रेमे पाई अच्छे सुख आनंद जो प्रेमे पाई अच्छे करुणा दान केमिति भूलिबे तुमरी प्रेम केमिति भूलिबे तुमरी प्रेम केमिति भूलिबे तुमरी प्रेम धन्यवाद प्रभु तुम महान धन्यवाद अच्छे राजा आज यहोवा जी परमेश्वर प्रभु आज मोर पाप पाई पिता परमेश्वर प्रभु आज से क्रूसरे राजा आज निज जीवन दियछ प्रभु से प्रेम को राजा आज हम केमिति भूलिबे यहोवा जी परमेश्वर राजा आज हमनकर समस्त प्रकार पिता अपराध ठान पिता परमेश्वर प्रभु क्षमा करी राजा आज हमनकर अपराध करियछ प्रभु तुम महान नाम धन्यवाद यहोवा जी प्रभु आज तुमर से मूल्यवान प्रेम को राजा आज हम जे प्रकार बोली न जीव राजा तुम सहायता करो बोली मां को यहोवा जी प्रभु आज जगतर के नाही कर राजा आज हमनकर मनर कथा जानि पार राजा आज हमनकर आखिर लुह पछे परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर तुम अट राजा आज हमनकर पिता परमेश्वर प्रभु उत्तम भाव पिता परमेश्वर प्रभु गड़ी अच्छे यहोवा जी प्रभु तुम महान धन्यवाद
ଦଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଏ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମରି ସେବା କରିବା ମତେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଛକୁ ନ ଫେରି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆଜି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ବଢିବା ମତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର କହୁଛି ଜବାବାଜି ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ଗୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପିତା ତମରି ଗୌରବ କରିବା ମତେ ତମ ମହାନ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଏ ଜବାବାଜି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଜାଗାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତା ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାଜା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜା ଆଜି ତମରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମ ପିତା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତମର ସେଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଜବାବାଜି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ। କିଏ ପଛେ ଦବ ମୋର ଆଖି ଲୁହ କିଏ ଜାଣି ପାରିବ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କିଏ ପଛେ ଦବ ମୋର ଆଖି ଲୁହ କିଏ ଜାଣି ପାରିବ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଯେ ତୁମେ କାମର ତୁମ ଠାରେ ରଖିছে ଭରସା ଯେସୁ ତୁମେ କାମର ତୁମ ଠାରେ ରଖିছে ଭରସା କର ମତେ ଗ୍ରହଣ ଦେଇ କ୍ଷମା କିଏ ପଛେ ଦବ ମୋର ଆଖି ଲୁହ କିଏ ଜାଣି ପାରିବ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଯୀଶୁ ରାଜା ଶାନ୍ତି ରାଜା ଶୁଣ ମୋର ନିବେଦନ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ମୋ ମନ କଥାକୁ ଜାଣ ଯେସୁ ତୁମେ କାମର ଆଶା ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ଭରସା ଯେସୁ ତୁମେ କାମର ଆଶା ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ଭରସା କର ମତେ ଗ୍ରହଣ ଦେଇ କ୍ଷମା କିଏ ପଛେ ଦବ ମୋର ଆଖି ଲୁହ କିଏ ଜାଣି ପାରିବ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କିଏ ପଛେ ଦବ ମୋର ଆଖି ଲୁହ କିଏ ଜାଣି ପାରିବ ଜୀବନ ଦୁଃଖ परमेश्वर प्रभु तुम ठारे समर्पण होमोची हबाजी राजा आज आमर समस्त प्रकार विषय तुम जाना परमेश्वर प्रभु आज शैतान पिता परमेश्वर जाल न पड़ी राजा आज प्रकार प्रभु तुम ठारे पिता परमेश्वर तुम साहाय्य कर प्रभु आज प्रभु शैतान पांद पात अच्छे राजा आज क्या ग्रासीब बोली परमेश्वर राजा किंतु आज आम सुरक्षाकारी परमेश्वर तुम प्रभु आज से जाल ठार राजा आज मान उद्धार कर विश्वास कर राजा पिता परमेश्वर प्रभु आज तुम प्रकार पिता परमेश्वर समस्त प्रकार साध्य अटे गज आवाज प्रभु आज आम मान को पिता परमेश्वर शैतान पिता परमेश्वर राजा चतुरतार पड़ा दब ना बोले विश्वास कर प्रभु तुम स्तुति हो राजा हालेलुया परमेश्वर राजा चारियाडे सयतन बिछाइছে जाल माया जाले धरिबाकू କରୁଛି କୌଶଳ ଅଟକାଇ
দুষ্ট দিয়ে বলো প্রয়োগ করুছে তার নিজ বল। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜେହୋଭାରେ ପ୍ରଭୁ ସୈତାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାଲ ଠାରୁ ରାଜା ଓ ତାର ବୋଲି ମାନୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆଜି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସୈତାନ ପିତା ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆଜି ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତାର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଯେ ପ୍ରକାର ଜାଲରେ ଆମେ ନ ପଡିବୁ ରାଜା ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ଅଛି ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱର। ଚାରିଆଡେ ସୟତାନ ବିଛାଇଛି ଜାଲ ମାୟା ଜାଲେ ଧରିବାକୁ କରୁଛି କୌଶଳ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଏ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ସେ କରୁଛି ତାର ନିଜ ବଳ। ହେ ଯେ ସରଜନ ତୁମେ କାମ ହେ ଯେ ସରଜନ ତୁମେ କାମ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରାଚୁର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ସେ କରୁଛି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେ ମନ ବୁଲାଉଛି ତାର କୁଟାଣିବାକୁ ଫାନ୍ଦ ପାତୁଛି ଲାଗୁଛି ଭୟ ନୁହେଁ କେ ସହାୟ ଲାଗୁଛି ଭୟ ନୁହେଁ କେ ସହାୟ ତୁମେ ଏକ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ଯୀଶୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ତମେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବେ ରାଜା। ଆଜି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମୟ ଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଥର ସହିତ ବସି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ଲିଡିଂ କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରକାର ରାଜା ପରିଚାଳନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆରାମ ସେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଁ କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେମିତି ନ ହେବ ରାଜା ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମାଁ କହୁଛି ଜେହୋଭାରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଉଭୟ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ସେ ଯେମିତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗମାନ ରାଜା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ରାଜା। ଆଜି ଆମେ ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ସହିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶଙ୍କର ମାଗୁଛୁ। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सिस्टर अति सुंदर भाव हमको गीत गाई प्रभुଙ୍କର आराधना करी वर्षिप मध्य अति सुंदर कढ़ाई नहीं धन्यवाद। प्रभु आपको प्रचुर रूप आशीर्वाद करंतु एपरी तांकर सेवा कार्य निमंते प्रभु आहरी व्यवहार करंतु धन्यवाद। आ अनुरोध करूछि आमनक मध्य छविलता आंटी अछंती आपण गीत संगीत पाठ करिबार सहाय्य करंतु। गीत संगीत 136 8 ରୁ 14। माने 8 ରୁ 14 पद पढ़िबा। दिवसरे कर्तृत्व करिबा पई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। रात्रि रे कर्तृत्व करिबा पई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। प्रथम जात मानकु संहार करबा द्वारा मिश्र को आघात कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी। केते 8 ରୁ 14 8 ରୁ
8 ରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ? 8 ରୁ 14 आंटी। पुणी सेमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ବିସ୍ତୃତ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ତାହା କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେ ସୁପସାଗରକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାର କରାଇଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। धन्यवाद आंटी, धन्यवाद। अति सुंदर भाव में गीत संहिता पाठ करी प्रांजल भाव में पाठ कर धन्यवाद। आसतु आम मुख्य समय उपस्थित होम वाक्य शुणिबार समय आम जहाँ सका उठिकी प्रस्तुत होता केवल प्रभुंर रब शुणा। आज आम प्रभुंर रब शुणा जा प्रभुंर वाक्य नहीं आसुवा भाई गोटे वाक्य पाठ करने को चाहे। गीत संहिता 119 रो 105। तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलुओ अटे। से प्रदीप तुल्य वाक्य आ से पथ तुल्य आलुओ नहीं आमनक मध्य नूतन भाव में प्रथम थर पाई सालम प्रेट टावर वाक्य नहीं आसुअछंती आम मानकर प्रिय भाई भाई सुमित। आसंतु आम माने एक उच्च करताल दे भाई सुमित को स्वागत करबा। भाई प्लीज चलो भाई ए समय आपणकर एबे आपण मानको प्रभुंकर वाक्य रे कढाई नेबे। सर्वप्रथम मु जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिए जे कि हम मानको गोटे नूतन दिवस रे पहुंचाई असन। ए दिन ए समय हमको देखबा निमंते हमर कोनोसी योग्यता कि कोनोसी पुण्यता हेतु नहीं कि कोनोसी धार्मिकता सकाश नहीं, किंतु प्रभु हम मानको निजर पुत्रतर अधिकार देले। से हम निज अपराध सब को कौन कले निज स्कंदरे बही नहीं से कालवरी क्रूसरे कौन कले समाप्त कले। आज से अधिकार और से व्यक्ति विशेष भाव में आम मान को मनोनीत कले। तेणुक से जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। आसतु आम मारे बाकी आड़ को जीवा पूर्व मुझे संक्षिप्त 3 मिनिट प्रार्थना करी। प्रभु तुम धन्यवाद करे राजा, तुम प्रशंसा करो। हाँ प्रभु आज जो वाक्य प्रभु कुहाई राजा ताहा मु जाने नहीं कि प्रिपेरेसन करी नहीं। प्रभु तुम आज वक्ता हो मुखपात्र से उद्धारित कथा कह। आज वाक्य जपर परमेश्वर समस्त गोटे आशीर्वाद कारण हम गोटे अनुग्रह कारण हम गोटे नूतन विषय शिखी आम जीवन में जपर कार्यकारी करें राजा से आम मान समस्त तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर। आज उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को तुम आशीर्वाद कर। विशेषकर परमेश्वर डिवाइस में जड़ित होता प्रत्येक व्यक्ति को तुम समर्पण कर राजा। पवित्र आत्मा आज समस्त व्यक्ति को तुम से पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ्य छुई जाओ। तुम से उपस्थित कार्य को आज ये जगह देखाओ। धन्यवाद दे राजा। आदर महिमा तुमको दे शीघ्र आसुवा प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ आसन्तु आम माने देखिबा कि पवित्र धर्मशास्त्र आज आम मानकु कोन कहै। पवित्र धर्मशास्त्र आज आम मानकु कोन कहै कि आम किए होतु हमर व्यक्ति विशेष कोन अटे। आमे माने होछु से परमेश्वरଙ୍କର शरीर। आमे माने होछु परमेश्वरଙ୍କର शरीर। आउ आमे माने ए जे धरा पृष्ठर अछु आमे निजे निजे गोटे योद्धा भाव में अछु। आमे गोटे योद्धा भाव में ए जगह आज आमे योद्धा भाव में अछु। या कि परि भाव में आमे निजे जानिबा। आ बाइबल प्रमाण दे कि आमे माने गोटे गोटे योद्धा जहा कि बाइबल प्रमाण अनुसार एफिसियो मंडली को 6 पर्व 10 पद रे लिखा अछि। एफिसियो 6 पर्व तार 10 पद रे लिखा अछि कि आमे माने होछु परमेश्वरଙ୍କର जोड़े जोड़े योद्धा। आम युद्ध कर जो विपक्ष व्यक्ति जी अटे कि से होछि शैतान। आमर विपक्ष होछि से दियाबल शैतान। मु कहूछि यह सत कथा, किंतु जदि आमे पढ़िबा नाही आमे देखिबा नाही ताहेले आमे किते भाबरे विश्वास करिबा कि आमे जने योद्धा आमर विपक्ष शैतान। जहा कि पवित्र धर्मशास्त्र लिखा अछि एफिसियो मंडली का पत्री 6 पर्व 10 पद लिखा अछि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अंधकार और संसार के अंधकार हकीमों और उस दुष्ट आत्मा सेना है जो आकाश में रहता है। हमारा ये युद्ध जो है एक ऐसी व्यक्ति के साथ है जो कोई ऐसे नहीं है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वो व्यक्ति एक ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ है जो कि परमेश्वर की उस सिंहासन के सामने बैठ के परमेश्वर की महिमा करने वाला एक व्यक्ति के साथ हमारा युद्ध हो रहा है।
और वो अच्छा खासा जानता है कि हम कितने पानी में जाते हैं। वो हमारा विश्वास को जानता है, वो शैतान हर एक युक्ति को जानता है। इसलिए परमेश्वर की वचन कहता है कि परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो और उस ऐसे शक्ति के सामना करो जो तुम्हारे सामने टिक ना सके। आज यूहन्ना कहता है, परमेश्वर के हर एक नाम को एक वर्णन करके कहता है। आज वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में? वो कहता है एक ऐसे व्यक्ति आएगा जो संसार के सारे पापों को, संसार के सारे चीजों को अपने कांधे पे उठा के वो क्या करेगा? ले जाएगा। हम बोलने से नहीं होता, हम आज बोलने से नहीं होता। अगर हम रेफरेंस के बाहर अगर बोलेंगे तो उस वचन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? एक प्रभु को एक नाम दिया है, वो है कुल्हाड़ी वाला यीशु। प्रभु को एक नाम विशेष करके दिया है, कुल्हाड़ी वाला यीशु। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है कि वो कुल्हाड़ी वाला यीशु। और अब कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट और आग में झोंका जाता है। ये फल किसके बारे में कहा जाता है? ये पेड़ किसके बारे में कहा जाता है? वो पेड़ है परमेश्वर, वो डालियां है हम। अगर परमेश्वर की उस जगह उस पेड़ में लग कर अगर हम फल उत्पन्न नहीं कर पाए, उस फल को हम अगर अपने जीवन में नहीं ला पाए, तो कहता है मत्ती की सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 10वां आयत में कहता है कि वो कुल्हाड़ी पेड़ के नीचे रखा गया है। अगर जो व्यक्ति फल नहीं लाएगा उस डालियां को काट कर आग के झील में डाल दिया जाएगा। क्या हम फल लाने वाले व्यक्ति हैं? क्या हमारे जीवन में उस फल को देखना चाहते हैं परमेश्वर? क्या हम उस फल को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? मैं उसकी पांव का जूती को भी उतारने का योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे बाद एक ऐसे व्यक्ति आएगा जो पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। मेरे बाद जो व्यक्ति आएगा पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। मैं तो आप लोगों को पानी में बपतिस्मा देने वाला हूं। आज परमेश्वर क्या कहता है? मत्ती 3 का 10 में कहता है, मैं तो पानी में तुमको बपतिस्मा दिलाऊंगा, वो भी मन फिराएगा, परंतु मेरे पास जो आएगा वो पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। क्या हम विश्वास करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर आने वाला है, वो आने वाला है। हम एक ऐसी समय है, हम एक ऐसी घड़ी में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो हमारे पास कुछ समय है, दिनों में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पास कोई सालों नहीं है, हमारे पास कोई महीना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कब आएगा किसी व्यक्ति को पता नहीं। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर बादलों पे आएगा, हम अपने खुली आंखों से देखेंगे। हम देख पाएंगे? हमारा तैयारी कैसे होना चाहिए? एक सांसारिक रूप से तैयारी होना चाहिए, एक आध्यात्मिक रूप से तैयारी होना चाहिए, तब जाके हम उस परमेश्वर को देखेंगे। हम कैसे देखेंगे? जब तक हम आवाज नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर को कैसे देखेंगे? आवाज हमको कैसे सुनाई देगा? हमारा तैयारी रहेगा, तब जाके हम उस परमेश्वर का तूही को जब सुनेंगे, तब उस बादलों पे आने वाला उस महिमा का परमेश्वर को हम देख पाएंगे। आपको पता होगा परमेश्वर के बहुत सारे वचनों में लिखा है, 10 कुमारी के बारे में लिखा गया है। 5 कुमारी तैयारी के साथ थे। 5 कुमारी क्या किए? जब दूल्हा आएगा तब हम देखेंगे, जब दूल्हा आएगा तब देखेंगे। क्या हम उस 5 कुमारियों में से तो नहीं है? क्या हमारा तैयारी 5 कुमारी नहीं? कब परमेश्वर आएगा तब हम तैयारी करेंगे। आज हम अपने जीवन को कैसे तैयारी कर रहे हैं? आज हमारे जीवन को हम कैसे तैयारी कर रहे हैं? क्या प्रभु के योग्य चाल चलन के अनुसार चल रहे हैं कि अपने जीवन के चाल चलन के अनुसार चल रहे हैं? आज हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को समीक्षा करना पड़ेगा। क्या प्रभु मैं जो जीवन जी रहा हूँ तेरे इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ या अपने इच्छा के अनुसार मैं चल रहा हूँ? इसलिए तो परमेश्वर कहता है उसके पास एक ऐसी सुपा है जो अच्छी चीज को और बुरी चीज को अलग अलग कर देगा। परमेश्वर के पास एक ऐसी सुपा है जो अलग अलग करने वाला, अच्छी जगह चीज को अच्छी जगह में रखेगा और बुरी जगह चीज को बुरी जगह में रखेगा। जो बुरी चीज है उसको उस आग की झील में क्या करेगा? डाल देगा। मत्ती 3 का 12 में लिखा है उसके हाथ में एक ऐसी सुपा है जो अच्छी अच्छी वस्तु को अलग करेगा और बुरी बुरी चीजों को वो क्या करेगा? अलग कर देगा। मत्ती 3 का 12 में लिखा है उसके हाथ में है और वह अपने खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेतों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा तो बुझता नहीं है। आज वही परमेश्वर अपने जीवित कला में कहता है कि मेरे पास उस अधिकार है, मेरे पास उस अथॉरिटी है कि मैं हर एक चीज को अलग कर सकता हूँ। क्या उस अच्छी चीजों और अच्छे वस्तु के में हम गिना जाते हैं?
क्या उस अच्छी चीज और अच्छी वस्तु में क्या हम गिने जाते हैं? नहीं तो हम उस आग की झील से हमको कोई बचा नहीं पाएगा। हमको उस आग की झील से कोई बचा नहीं पाएगा। आज हम अपने आप को दिखाने के लिए दुआ तो करते हैं, वचनों तो पढ़ते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रेजेंटेशन करते हैं, परंतु अपने अंदर में क्या वास्तविकता रूप में परमेश्वर का योग्य चाल और चलन चलते हैं? नहीं तो उस भूसे वाले हम क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। आज हमारे मसीही समाज में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को सुपर नेचुरल करते हैं, अपने आप को बहुत ऐसे बताते हैं कि मेरे से ज्यादा अच्छा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं है। आज हम दिखावे में बहुत आते हैं। आज हम अपने आप को बहुत अच्छे पोस्ट में रखना चाहते हैं। मेरे को हर कोई व्यक्ति नमस्कार करे, हर कोई व्यक्ति मेरे को इज्जत दे, मेरे को अच्छा स्थान मिले, मेरे को बहुत बहुत जगहों में मेरे को बुलाया जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा करेगा, परमेश्वर अपने राज्य में उसको बड़ा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा करेगा तो परमेश्वर उसी स्वर्ग राज्य में उसको बड़ा स्थान देगा। ये नो डाउट, क्योंकि परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन 100 गुना 100% सही है। कोई भी चीज विफल नहीं होने वाला, हर एक चीज सफल होने वाला है। जिस समय यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात को उपवास किए थे, उस समय शैतान ने आके उसको भरमाने के लिए बहुत प्रयास किया। तो अगर सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, उस पत्थर को आज्ञा दे कि रोटी हो जाए, ताकि तू अपना भूख को मिटा सके। परंतु तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया वचनों के साथ, मनुष्य के रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर का मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा, हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज हम उस वचन के अनुसार जीवन यापन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर कुल्हाड़ी वाला यीशु जो बुरी चीज को है वो क्या करेगा? खत्मा कर देगा। वो बुरी वस्तु को क्या करेगा? उस आग के झील में जला डालेगा, क्योंकि उसके हाथ में क्या रखा गया है? उस सुपा रखा गया है, उसके पास उस अथॉरिटी है, उसके पास उस अधिकार दिया है परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर वैसे परमेश्वर नहीं है। आज हम लोग इंस्टेंट हमारा प्रार्थना सुनाई क्यों नहीं जाता? आज हम लोग कितने भी गलती करते हैं, हमारा पाप का इंस्टेंट न्याय क्यों नहीं होता? क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस काल्वरी क्रूस पर जो बलिदान देकर, जो अपने लहू के मोल लेकर हमको खरीदे हैं, इसलिए हमको अवसर दिया जाता है। नहीं तो आप पुराने नियम में देखेंगे जो 613 व्यवस्था था, उस व्यवस्था के अनुसार जूइश लोग, यहूदीवाद लोग, उन लोग चलते थे। अगर कोई धर्मगुरु अगर थोड़ा सा भी पाप करता था, उस परमेश्वर के भवन में घुसते ही वो मर जाता था। आपको पता होगा हनानिया और सफीरा परमेश्वर के सामने मन्नत मांगे थे, उस पवित्र मंदिर में जाके मन्नत मांगे थे कि हमारा वो जो जमीन है उसको बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, जो भी चीज आएगा, उसका मूल्य आएगा, हम तेरे मंदिर में दे देंगे। परंतु जब उस जमीन को बेचने के बाद उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ, लालसा उत्पन्न हुआ। देखो उस परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर के उस नबी के सामने झूठ बोले, उस पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोले कि इसका मूल्य इतना ही है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया वैसे ही मर गए। उसके वाइफ भी आया, वो वैसे झूठ बोला कि नहीं इतना ही था और उसका मूल्य इतना ही है। उसी घड़ी उसके वाइफ भी खत्म हो गया। आज न्याय नियम में क्यों नहीं होता ऐसा? आज न्याय नियम ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए हर एक चीज को, क्या व्यवस्था को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। आज हमको क्या करना पड़ेगा? एक साधारण व्यक्ति आज आप और मैं नहीं है। एक साधारण व्यक्ति आज आप और मैं नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक बहुत आय से आशीष दिए हैं। क्योंकि हमारे जीवा में, हमारे मुख में आशीष है, हमारे जीव में अनुग्रह है। हम जो भी बोलेंगे वो सही होगा, जो भी बोलेंगे वो सही होगा। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह जाते जाते अपने चेलों को सिखा के गए हैं। क्या सिखा के गए? मैं तुम्हें अलग या अकेला करके छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें अनाथ करके छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक सहायक यानी कि पवित्र आत्मा को देके जा रहा हूँ। तुम्हें हमेशा गाइड करेगा, तुमको हमेशा लीड करेगा, तुमको हर एक चीजों को क्या करेगा? बताते जाएगा। उसी दिन उन लोग का आत्मिक अंधापन जो था, उनका जो आत्मिक आंखें था, जो क्या हो गया? खुल गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले लोग रहते थे, उनके साथ चिन्ह और चमत्कार देखते थे, परंतु उनके आत्मिक आंखें खुल नहीं पाते थे। उन लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते थे, प्रभु तू कैसे करता है? हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, कैसे नहीं हो पाते ये सब चिन्ह और चमत्कार? क्योंकि उन लोग का जो विश्वास था हमेशा डगमगाने वाला विश्वास था, हमेशा
डगमगाने वाला विश्वास था। आज हमारा विश्वास वैसे तो नहीं, दोनों नाव पे पैर रखे चलने वाला व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि भजनकार दाऊद कहता है अपने पत्री में, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है क्योंकि उसके विरुद्ध में पाप करना था। आज हमको ये वचन को बहुत आयत से अपने हृदय में रखना बहुत आवश्यक है। नो डाउट हम प्रार्थना कर रहे हैं, नो डाउट हम संगति में जा रहे हैं, नो डाउट हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, परंतु परमेश्वर की वचन कहता है जिस व्यक्ति के जीवन में वचन नहीं है, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं। आज हमारे क्रिश्चियन समाज में स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस बहुत पाया जाता है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, हम आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वभाव रहता है एक नम्र स्वभाव रहता है, क्योंकि हम मसीहत में हर एक व्यक्ति को प्यार करते हैं। जो भी बात कोई भी व्यक्ति बोल देता है, वो क्या बोलता है, हम सोचते हैं कि वो सही बोलता है। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, कौन सा परमेश्वर से है कौन सा शैतान से है, उसको परखो। आज उसी के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। क्या उसी पवित्र आत्मा की ओर से हम चलते हैं क्या हम उसी पवित्र आत्मा की चलाई चलते हैं क्या? आज हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्या हमारा वचन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चल रहा है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहा है? क्या हमारा जीवन प्रार्थनाओं के जीवन चल रहा है? क्या हम लोग घुटनों के जीवन जी रहे हैं? मैं आप लोग के बीच में मैं एक ऐसे 3 व्यक्ति विशेष के बारे में रखूंगा जो परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरा करते थे। पहला व्यक्ति है दाऊद, दूसरा व्यक्ति है यूसुफ और तीसरा व्यक्ति है दानिएल। ये तीनों व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, वो परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते थे। बिना प्रार्थना के, बिना पवित्र आत्मा के गाइड से इन लोग कोई भी काम नहीं करते थे। जैसे जैसे पवित्र आत्मा उनको लीड करता था वैसे वैसे चलते थे। आज हम भी वैसे चल रहे हैं क्या? क्योंकि हम एक ऐसी समाज में जीते हैं जो हमको बहुत सारी चीजों में भरमाया जाता है, बहुत सारी चीजों में फरमाया जाता है। पहला कोरिन्थियों उसका 12 का 7 आयत में लिखा है, पहला कोरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 7, कि तू सबके भला पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। आज जो पवित्र आत्मा दिया गया है, हर एक कामों को, हर एक भले कामों को क्या करना पड़ेगा, प्रकाशन देने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। आज हमारा उन्नति हो रहा है क्या? आज अपने आप को एक क्वेश्चन करिए, क्या मेरा उन्नति हो रहा है क्या? मैं इतना दुआ जाता हूँ, इतने चर्च में जाता हूँ, उपवास करता हूँ, क्या मेरा उन्नति हो रहा है? अगर उन्नति हो रहा है तो किस रीति से उन्नति हो रहा है? आपका आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है या सांसारिक उन्नति हो रहा है या और कुछ चीजों से उन्नति हो रहा है? हम अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छे खाने से या अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूमने से हमारा उन्नति नहीं है। हमारा उन्नति स्पिरिचुअल होना चाहिए। और स्पिरिचुअल उन्नति कैसा होना चाहिए? हम अपने घर में एक आदर्श बेटा, बेटी, पति, पत्नी, घर के मुखिया होना चाहिए। समाज में एक अच्छा व्यक्ति विशेष होना चाहिए। सोसाइटी में एक अच्छे व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि हम क्रीम पाउडर लगा के अच्छा कपड़ा पहन के जाके चुपचाप बैठ जाए, ऐसे नहीं। हमारा स्वभाव से, हमारा चाल चलन से, हमारा बातचीतों से, हमारा देखना, सोचना, हर एक चीज क्या होना चाहिए, एक पवित्रता होना चाहिए। हम लोगों को दिखावा का जीवन नहीं जीना चाहिए, हम लोगों को दिखाने का जीवन नहीं जीना चाहिए। क्या हमारा तैयारी कैसा हो रहा है उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए? मनुष्य का आयु 70 से 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। उसके बाद क्या करो? उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला। मैं आप जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरे को लगता है सबसे छोटा मैं ही हूँ, सबसे छोटा व्यक्ति मैं ही हूँ, उम्र से भी और हर एक चीजों से। मेरी बातों को अन्यथा मत देना। आज हम देखते हैं डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में। दाऊद एक कैसे व्यक्ति था जिसको यूसुफ कहा जाता है। यूसुफ क्या करता था? परमेश्वर का भय करता था, परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था। तो चैप्टर 39 का 9, आदि पुस्तक उसका 39 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों हूं? दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर को विरुद्ध जाके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ऐसे दंड की पात्र नहीं बन सकता जो परमेश्वर मुझे उस आग की झील में डालेगा। मैं नहीं करूंगा वैसे, क्योंकि वो परमेश्वर का डरता था, परमेश्वर को भय मानता था। उसके भाई लोग उसको मारे पीटे, उस बड़ा गड्ढे में डाल दिए, फिर भी उसके भाई के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, कभी ईर्ष्या नहीं किया, कभी कुड़कुड़ाया नहीं वो, क्योंकि वो जानता था वो परमेश्वर उसको कभी ना कभी उठाएंगे।
जिस समय मिस्री लोगों के हाथों में उसके भाई को बेच दिए। देखो, एक ऐसे व्यक्ति के पास वो चला गया, एक मिस्री ऐसे व्यक्ति के पास चला गया, उस राजभवन में रहने लगा, और जिस दिन उस राजभवन में रहने लगा, उस राज्य की बढ़ोतरी होने लगा। वो राजा ने उसको समझ लिया कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति है, इसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, ये व्यक्ति एक खरा मनुष्य है, ये व्यक्ति एक पवित्र मनुष्य है। वो कौन कहता है? 44 जेनेसिस चैप्टर 39 का 10 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातचीत करता रहा और उसकी ना मानी, फिर उसके पास लेटता हुआ उसका संग क्यों रहे। 44 का स्त्री कहता था कि यूसुफ इतना रूपवान दिखता था, इतना सौंदर्य दिखता था, इतना बहुत अच्छा व्यक्ति दिखता था, तो उसकी स्त्री ने उसको अपने लालसा में, अपने जाल में फांदने लगा कि उसको मैं पाप में डाल सकूं। परंतु यूसुफ परमेश्वर को भय मानता था, वो कभी भी उस महिला के साथ गलत काम किया नहीं। उसी दिन अगर उस महिला के साथ यूसुफ ने गलत काम किया होता तो क्या होता? परमेश्वर की उस अनुग्रह से, परमेश्वर ने जिस वायदा उसको किए थे, परमेश्वर ने जिस समय उसको दर्शन के माध्यम से दिखाए थे, जो अधिकारी बनाने के लिए, जो राजा नियुक्त करने के लिए, वो बन पाता क्या? कभी नहीं बन पाता। इसलिए वो परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए तो राजा क्या कहता है? ये एक ऐसा पुरुष जिसमें परमेश्वर की आत्मा समाता है, वो ऐसा पुरुष जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। राजा ने उसको क्या कहा? तू मेरा राज्य नहीं छोड़कर तू संसार का सारी चीज और वस्तु के ऊपर अधिकार कर सकता है। देखो, एक परमेश्वर का भय मानने से उसको एक छोटे से दास से आया था, परंतु उसको उसी देश का राजा बनाया गया। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है, जो समय नियुक्त किया है, जो आपको और मेरे साथ जो वायदे किए हैं, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, वो जरूर पूरा होगा। इसलिए तो प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 5 में लिखा है, ये बातें सुनो कि हनानिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। मैं कुछ देर पहले आपको बताया था, हनानिया और शफीरा के जीवन में जो हुआ था, वो मंदिर में रहने वाले धर्मगुरु, उस जगह में रहने वाले हर एक व्यक्ति उस चीज को देख कर डर गए, और डरने का मतलब ये था कि ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, इसलिए इसी घड़ी उन लोग मर गए। यीशु से हम क्या सीखते हैं? वो कोई भी कंडीशन में, किसी भी हालत में वो क्या रहता था? खुश रहता था। वो खुश रहता था, भले ही उसके भाइयों ने उसके साथ जो भी किए, उससे उसको कोई शिकवा नहीं था। पुराने उसको बंदीगृह में भी डाल दिया था, उसके लिए कोई शिकवा नहीं था। वो जिस हालत में था वो क्या था? खुश था। यीशु से हम और क्या सीखते हैं? वो अपने सफलता को क्या करता था? संभाल के रखा था। वो अपने मन को, अपने हर एक चीजों को नियंत्रण करके रखा था। वो अपने धार्मिकता को क्या करता था? नियंत्रण करके रखा था। वो डगमगाने के लिए नहीं दिया, डगमगाने के लिए नहीं दिया। तो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राण बचाने तुम्हारे वंश बढ़ेगा। देखो, यीशु को राजा बनाने से पहले परमेश्वर ने कई साल पहले उसको दिखाए थे, जो भविष्यवाणी किए थे, आज वो पूरा करने के लिए जा रहे थे। इसलिए वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, और यीशु अंत तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यीशु परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यूहन्ना 15 का 5 आयत में लिखा है, क्योंकि तुझसे मैं अलग होकर तुमसे कुछ भी नहीं कर सकता। वो कह रहा है अपने वचनों में कि मैं परमेश्वर से अलग होके मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, तुझसे क्या? वो एक अच्छा मनुष्य था, अपने भरोसा को, अपने जो नियंत्रण को अपने काबू में रख सकता था। और दूसरा, दाऊद को, दाऊद से हम क्या सीखते हैं? दाऊद एक ऐसे अच्छा व्यक्ति था, अपने दिल में किसी व्यक्ति के प्रति कुड़कुड़ाता नहीं था। भले ही वो भेड़ बकरियां चढ़ाता था, फिर भी वो उसका दिल वो अच्छा था। परमेश्वर पहले से ही उसको नियुक्त किए थे, परमेश्वर पहले से ही उस व्यक्ति को चुना हुआ व्यक्ति था। इसलिए तो 1 शमूएल उसका 13 का 14 में लिखा है कि वो चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर उसके मन को देखा था। आज हर एक व्यक्ति का मनों को ज्ञाता परमेश्वर है। आज हम यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, हम किस रीति से बैठे हैं हमको पता नहीं, परंतु उस परमेश्वर को पता है। वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानता है। इसलिए तो परमेश्वर के जीवित कला में लिखा है, मनुष्य बाहरी ओर देख के अपने हर एक आकलन करता है, परंतु परमेश्वर अंदरी भाग को देखते हैं। वो हमारे मन में हर एक चीज, जो भी चीज और वस्तु चलता है, हर एक चीजों को जानने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का जीवित कला में जो भी बातें लिखा गया है, वो कई बात आया गया है। वो वैसे वचन नहीं है। वो हम आज जो वचन पढ़ रहे हैं वो कॉमिक्स नहीं है, वो एंटरटेनमेंट का किताब नहीं है। वो परमेश्वर का जीवित कलाम है, जो हमको उस स्वर्ग राज में ले जाने वाला एक पुस्तक है।
आपको पता होगा दो व्यक्ति के बारे में, एक लाजरस व्यक्ति जो कि कंगाल व्यक्ति था और एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति साथ साथ मर गए। एक व्यक्ति अब्राहम के गोद में चला गया और एक व्यक्ति कहाँ चला गया? उस नरक की आग की झील में चला गया। उसी नरक की आग की झील में से जब आंखें उठा करके देख रहा है, जो व्यक्ति की मेरे फाटकों के सामने भीख मांगता था, जो मेरे मेज से गिरा हुआ टुकड़ा बटोरता था, आज देखो वो व्यक्ति अब्राहम के गोद में कैसे बैठा है। वो देख के आश्चर्यचकित हो गया, ये व्यक्ति कैसे चला गया? उसी समय वो कह रहा है, हे पिता अब्राहम, उस लाजरस को भेज दे, अपनी छोटी वाली उंगली से एक बूंद पानी मेरे जीभ में डाल दे ताकि मुझे ठंडकता मिले। परमेश्वर ने क्या कहा? यहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं, यहाँ का व्यक्ति वहां नहीं। तो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा। वो अपने आप को तुरंत वो समीक्षा कर लिया, अपने आप को तुरंत पश्चाताप कर लिया, कहने लगा उस लाजरस को भेज दे, संसार में मेरे और चारों पांचों भाई हैं, उनको समझा दे कि उन लोग अच्छे काम करें ताकि मैं जिस जगह में हूँ उस जगह में उन लोग ना आए। परमेश्वर ने क्या कहा? उनके पास मूसा की दी गई धर्मशास्त्र और ग्रंथ की पुस्तक है, उन लोग उसको पढ़े और समझे और उसी के अनुसार जीवन यापन करे। आज हमारे पास पवित्र धर्मशास्त्र है, हर एक पवित्र बाइबल है, क्या हम उसको पढ़ते हैं? आज हम पढ़ते तो हैं, समझते हैं क्या? हम अपने दिमाग, अपने ज्ञान के अनुसार पढ़ते हैं, परंतु जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ किसी व्यक्ति को नहीं आएगा, उस समझने के साथ शक्ति नहीं आएगा, तब तक उस वचनों को हम समझेंगे नहीं। आपको पता होगा असूर के राजा खोजे जो यरूशलेम जा रहा था, एक रथ में बैठ के जो ईसाया नबी भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को पढ़ रहा था, वो कई सालों से परमेश्वर को जानता था, उस मंदिर में जाके दंडवत करता था, वो मंदिर में जाके बलि देता था। क्या उसको पता नहीं था ईसाया नबी की पुस्तक जो पढ़ रहा हूँ इसमें क्या लिखा है, क्या कहता है? देखो, फिलिपुस नामक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा स्वर्गदूत को भेज करके उसको बोले कि देख, एक ऐसी राजा जो खोजी नामक यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा है, जो रथ में बैठा है, वो यशायाह नबी की भविष्यद्वक्ता को पत्री को पढ़ रहा है, वो समझ नहीं रहा है, तो उसके पीछे दौड़ ले, तो उसके पीछे भाग। और देखो, पवित्र आत्मा ने उसको जैसे जैसे कहा था वो वैसे वैसे उस जगह में पाया। उस राजा को पूछा, हे राजा, तू जो पत्री पढ़ रहा है क्या समझ रहा है? तो राजा ने क्या कहा? जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूं? जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूं? आज हम वचन को पढ़ते हैं, किस रीति से समझते हैं? आज हम वचन को सुन रहे हैं, कैसे समझते हैं? इसलिए दाऊद को परमेश्वर पहले से ही उसको चुना हुआ था, उसके मनों को अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था। उस भेड़ बकरी को वो चलाता था, वो जंगल में हमेशा जाता था और भेड़ बकरियों के साथ ही रहता था। वो परमेश्वर का भय मानता था। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 22वां आयत में लिखा है। फिर उसने अलग करके दाऊद को उनको राजा बनाया, जिसके विषय मैंने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। परमेश्वर कहता है वो यिशै का पुत्र, जो छोटा लड़का जो भेड़ बकरी चलाता था, उस दाऊद को मैंने राजा होने के लिए अभिषेक किया। मैं जो भविष्यवाणी किया हूँ उस व्यक्ति के पास जाना, उस व्यक्ति के पास जाना और उसको अभिषेक करना। वो बड़ों का आदर करता था। दाऊद जो है बड़ों का आदर करता, वो बड़े नम्र स्वभाव का था, उसका दिल बहुत अच्छा था, किसी को पलट के जवाब नहीं देता था। इसलिए तो पहला सामुएल उसका 24:6 में लिखा है, और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ने करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा की अभिषिक्त है ऐसे काम करूं, उसके हाथ जाऊं, क्योंकि यहोवा अभिषिक्त है। आज हम परमेश्वर के अभिषिक्त जनों को कैसे आदर करते हैं? आज हम अपने बड़ों को कैसे आदर करते हैं? आज हम परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को कैसे आदर करते हैं? आज आप और मैं ही जानते हैं और वो परमेश्वर जानता है। इसलिए तो कहता है इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय इसका 1 आयत में कहता है कि हम अपने बड़ों का आदर करें, हम अपने से बड़ों का आदर करें, प्राचीनों का आदर करें। जो पक्के बाल है, वृद्ध लोग है, उसका हम आदर करें, क्योंकि उन लोग आदर का योग्य है, क्योंकि आदर का योग्य है। इसलिए तो कहता है जो कोई व्यक्ति अपने माता पिता कोसता है वो घोर अंधकार में हो जाता है। जो कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का और अपने माता पिता का कोसता है, गाली देता है या कुछ भी अभिशाप देता है, वो घोर अंधकार में चला जाता है। इसलिए प्रकाशित 22:22 में लिखा है अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, नहीं तो हम उस अभिशाप में पड़ जाएंगे। हम कुछ भी काम करेंगे वो काम कभी सफल नहीं हुआ, कभी सफल नहीं होगा। लेवी व्यवस्था उसका 19:32 में कहता है कि पक्के बाल वाले का आदर करना चाहिए। जिसके बाल पक्का हुआ है उस व्यक्ति को हम आदर करना चाहिए, क्योंकि उन लोग आदर का योग्य है। डेविड हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से भरोसा करता था, वो ट्रस्ट करता था, वो विश्वास करता था। इसलिए पवित्र धर्मशास्त्र में क्या लिखा है?
भजन संहिता उसका 56 का 11 अध्याय में लिखा है, मैंने परमेश्वर से भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजनकार दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, मनुष्य मुझे कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य से मैं क्यों डरूं? मनुष्य मुझे भले ही अपने ये शरीर को घात कर सकता है, परंतु इस आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। परंतु मैं ऐसे व्यक्ति के साथ डरता हूँ जो मेरा इस शरीर को और आत्मा को घात कर सकता है। मैं एक ऐसे परमेश्वर को डरता हूँ जो इस शरीर और आत्मा को उस आग के झील से बचा सकता है। अब हम संसार से डरते तो है, परंतु जिसको डरना चाहिए हम उसको नहीं डरते। दूसरा सामुएल उसका 12 का 13 में लिखा है कि तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा, तू ना मरेगा। राजा हिजकिय्याह को जानते होंगे, बहुत सालों से बीमार पड़ा था। वो बिलक बिलक के रोने लगा, बिलक बिलक के प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने आयु को 15 साल बढ़ा दी, 15 साल बढ़ा दी। वो परमेश्वर आप 15 साल बढ़ गए। परमेश्वर ने क्या कहा, ये दिन का जो धूप है 10 अंश बढ़ जाएगा। वो तो कहा, ये तो स्वाभाविक बात है, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है उसका छाव भी बढ़ता जाता है। मैं चाहता हूँ ये जो धूप का छाव 10 अंश पीछे घटते जाए। और परमेश्वर का मुख से निकला इसी वचन के अनुसार 10 अंश पीछे घट गया। वो जान गया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने मेरी विनती को सुन लिया है, मैं और नहीं मरूंगा। मेरे आयु को 15 साल बढ़ा दिया है। आज उसी परमेश्वर आज आपको और मेरे को कहता है कि तुम परमेश्वर की हर एक हथियार बांध लो। तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति नहीं टिक सकता, तुम्हारे सामने से कोई भी व्यक्ति खड़े नहीं हो सकता जो तुमको शरीर से तो घात कर सकता है, परंतु उस आत्मा को छू ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, तुम मेरे मंदिर हो, जो कोई व्यक्ति इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हम जीवन यापन करते हैं? क्या दानियल से हम क्या सीख सकते हैं? दानियल किसी व्यक्ति के साथ समझौता नहीं करता था, दानियल किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया था। वो परमेश्वर का कुछ खरी शिक्षाओं के साथ चलता था, वो परमेश्वर को उस आत्मा की अगुवाई से चलता था। इसलिए दानियल को कितना भी हानि उठाना पड़े होना, दानियल को कितना भी विपत्ति पड़े ना क्यों, वो क्या नहीं डगमगाया। दानियल उसका 1 अध्याय उसका 8 में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा के उस वचन खाकर अपने पीने दाग मधु से पीकर अपवित्र ना बने। देखिए दानियल ने समझौता नहीं किया, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कहता हूँ कल माफी मांग लूंगा, कभी ऐसा नहीं सोचा। वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर को था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा था कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, आज मैं जो विनती कर रहा हूँ, आज मैं उपवास कर रहा हूँ, मेरा प्रार्थना और विनती दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा कोई भी हालात में हो वो क्या करता था? प्रार्थना करता था, परमेश्वर से डरता था, हर हालत में खुश रहता था, अपने सफलता को संभाले रखा, दिल में अच्छा व्यक्ति था, बड़े आदर करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से भय करने वाला व्यक्ति था, अपने आप को कभी डरता नहीं था। मुझे कुछ भी हानि उठाना पड़े ना क्यों, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहूंगा, मुझे कुछ हो जाए ना क्यों, मैं परमेश्वर का आदर करना कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो दानियल को सिंह की गुफा में डाल दिया गया, फिर भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसको सिंह की गुफा से उसको बचा लिया। क्या आज आपको और मेरे को नहीं छुड़ा सकता? क्या आज आपको और मेरे को मेरा समस्या को वो समाधान नहीं कर सकता? क्या वो ऑब्वियसली कर सकता है। वो जानता है कि हम किस रीति से परमेश्वर का भय मानते हैं, आज हम किस रीति से परमेश्वर का योग्य के हिसाब से चलते हैं। अच्छा हम परमेश्वर की क्या चल रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर की उस आज्ञाओं का अनुसार चल रहे हैं? क्या शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप एक प्रार्थना योद्धा बनो, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप घुटनों का जीवन जियो, शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर को दो। आज शैतान बड़े जोर शोर से अपने काम को लगा पड़ा रहता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को वो अपने पाप के बस में डाल देता है, चाहे वो परमेश्वर का जानने वाला व्यक्ति हो ना क्यों, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो ना क्यों, वो क्या कर देता है? भरमा देता है। इसलिए तो पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? और सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है, इसको फाड़ खाए। वो हमेशा इस खोज में लगा रहता है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर का उस भय के अनुसार चलता है, कौन व्यक्ति परमेश्वर का उस इच्छा के अनुसार चलता है।
शैतान का एक दवा क्या हो गया है, चलते आया है। उस अदन की वाटिका में, उस अदन की बगीचा में, उस हवा और आदम को वो अपने और से बहला फुसला करके उसे पाप में डाल सकता है। क्या आज आप पर मेरे को शैतान नहीं बहका सकता क्या? देखिए शमौन को, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, जो यीशु मसीह का चेला था, उसको भी क्या करना था? बहका दिया था। उसको भी बहका दिया था। क्या उससे हम बेहतर है क्या? क्या उससे हम ज्यादा विश्वासी है क्या? जो यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति को जब वो बहका सकता है, तो आज हम संसार में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति क्या हमको नहीं बहका सकते क्या? हमारा तैयारी कैसे होना चाहिए? हमारा तैयारी कैसे होना चाहिए? देखो एक समय ऐसा था पतरस को बहका दिया था, एक समय ऐसा था यहूदा को बहका दिया था, एक समय ऐसा था शमौन को बहका दिया था। सारे संसार को और सारे सेना को बस में कर डाला। वो बड़े जोर शोर से अपने राज्य को विस्तार में लगा रहता है। आज पहला यूहन्ना 5:19 में कहता है कि सारा संसार उसके चंगुल में फंसा पड़ा है। आज पूरे सारे संसार उस शैतान की दुष्टता के बस में पड़ा रहता है। आज हमको परमेश्वर के सारी हथियार को बांधना पड़ेगा। परमेश्वर की सारी हथियार को बांधना पड़ेगा। हमारा ये मलय कोई मांस और लहू से नहीं है, उस अंधकार की शक्ति और परम प्रधान उस शैतान हाकिमों से है, जो हमको हमेशा भरमाता है। आज हमको सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। आज हमारा पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। इसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम उसकी राज्य और उसका धार्मिकता का खोज करो। पहले उसकी राज्य और धार्मिकता का खोज करो। ये बात कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना का जीवन जियो, आप घुटनों का जीवन जियो, आप वचनों का जीवन जियो। आज परमेश्वर की वचनों के अनुसार आपको चलना बहुत आवश्यक, उस वचनों के अनुसार चलना बहुत आवश्यक है। आज मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल तो दिया हूँ और मैं नहीं चलूंगा, मुझे भी चलना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर की छोटी सी वचन को लेके आज बहुत आहिस्ते आते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार संसार के अंत तक, परमेश्वर की उस दुष्ट आगमन तक अपने अपने वचनों के अनुसार हम स्थिर बन सके, वचनों के अनुसार हम चल सके। इसलिए परमेश्वर आज सभी को बहुत आहिस्ते